That's a very political reply, but नहीं, otherwise I'm saying as a layman, अब मोदी जी भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। what do you think is the biggest misconception foreigners have about India? हिंदुस्तान की पहचान ही विविधता है। As a tourism minister, how do you feel when you see the conflicts between, Hindus and Muslims, where we are fighting for a religious site? लोगों ने मोन्यूमेंटल टूरिज्म की जगह एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को प्रीफर करना शुरू किया। Are you in favor of limiting people in eco-sensitive areas? बाहर निकला और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। कहीं भी चले जाइए, आप कहिए कि मैं भारत का हूँ, तो उसके मुंह पर बिना का स्माइल दिखेगा। ओ मिस्टर मोदी। Hello and welcome back to PTI's podcast. India is not just a country. It's a civilization, a cultural experience. It's a spiritual journey, a tapestry of diversity woven over centuries. It is home to spiritual centers and royal palaces. It has ancient Hindu temples and Islamic monuments, each one of them narrating a unique story of its own. Nature has bestowed on India the immense beauty of towering mountains and jungles teeming with wildlife and the seas with serene beaches. India hosts no less than 44 UNESCO heritage sites, including the most recognizable monument on earth, the Taj Mahal. Domestic travel market is booming, and yet, despite its extraordinary scale and diversity, India attracts far fewer international tourists than countries like Thailand, France, Italy, or even tiny Singapore. So how do we position ourselves as a major global tourism destination? How should India present its history and identity to the world? Can tourism become a major engine of jobs, investment, and soft power? These are important questions that go to the heart of a sector of economy that seems to be hiding in plain sight. We, the common people, are aware of it, but perhaps we don't realize its potential magnitude or significance. Joining us today to discuss some of these questions is Union Minister for Tourism and Culture, Gajendra Singh Shekhawat. Gajendra ji, welcome to PTI, and it's a pleasure to have you with us. Thank you very much, and thanks for giving me this opportunity. So let's start the conversation from where I left off in the intro. India has the scale, history, and cultural depth to be one of the world's greatest tourist destinations. So why do you think India attracts so few international tourists compared to other countries? We get only 10 million, and Thailand gets 35 million. See, आपने जो कहा है, मैं उस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। उसके बहुत सारे कारण हैं। कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू दूसरे देशों के साथ में है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरा बहुत बड़ा इशू था, और उसके साथ साथ में उस तरह की सुविधाएं जिनकी अपेक्षा एक विदेशी सैलानी करता है, उन सुविधाओं में कमी होना। लेकिन पिछले वर्षों में जिस तरह से इसको एड्रेस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से काम हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से हुआ, ये मॉडर्नाइज हुआ, द वे एविएशन इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान में ग्रोथ किया, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़े, उसके कारण से कुछ हद तक ये एड्रेस हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ में उसी कालक्रम में, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह के प्रयास किए, उन प्रयासों के चलते हुए देश में करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के बाहर निकल पाए। जब लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले और अर्थव्यवस्था ने प्रगति की, तो भारत का डोमेस्टिक ट्रैवलर वो घर से बाहर निकला और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। मैं उसके बारे में बात करूंगा बाद में। हाँ। लेकिन जब ये इजाफा हुआ, तो उसने हमारे टूरिज्म के जो डेस्टिनेशंस थे, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबल नंबर ऑफ रूम्स, ये इसके ऊपर जब डोमेस्टिक ट्रैवल का दबाव बढ़ा, तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ी। जब कॉस्ट बढ़ी, तो वो विदेशी सैलानी के लिए कंपैरेटिवली कॉस्टली होने लगा। इसलिए जो लाभ इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ का हमको एज ए सेक्टर टूरिज्म को हुआ, क्योंकि
उसके चलते हुए अगर मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को जोड़ूं तो हमारा बहुत इजाफा हुआ। लेकिन भारतीयों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी, इसलिए वो जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमारे लोगों ने कंज्यूम किया, उसको अवेल किया, इसलिए दूसरे लोगों के लिए कंपैरेटिवली वो एक्सपेंसिव होने लगा। दूसरा, पिछले वर्षों में, पिछले लगभग 1-2 दशक से ट्रेंड चेंज होने लगा, लेकिन कोविड के बाद में बहुत तेजी से वो ट्रेंड बदला है। लोगों ने मॉन्यूमेंटल टूरिज्म की जगह एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को प्रीफर करना शुरू किया। हमने भी उस दिशा में प्रगति की है, उस पर काम कर रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए डेस्टिनेशंस बनाने की बात की है। एक्सपीरियंसेस के कुछ एग्जांपल्स देंगे? वेलनेस पर हम लोगों ने काम किया है, वाइल्ड लाइफ पर हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने जो है म्यूजिक बेस्ड टूरिज्म, इवेंट बेस्ड टूरिज्म पर काम करना शुरू किया। दुनिया में अब टूरिज्म का प्रकार बदल गया है। सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस पर जब नए सिरे से काम हो रहा है, आज कल्चर बेस्ड टूरिज्म हो रहा है, क्यूजीन बेस्ड टूरिज्म पर काम हो रहा है, एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म पे काम हो रहा है, नेचर बेस्ड टूरिज्म हो रहा है, डिफरेंट तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं उनको इंड्यूस करने के लिए उनकी डिमांड बढ़ी है। तो इन सब के चलते हुए जो है इंटीग्रेटेड जो टूरिज्म उसको डेवलप करेंगे तो हमारे यहाँ भी निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पे और अधिक इंटरनेशनल टूरिस्ट की ग्रोथ हो सकती है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ कि टूरिज्म जनरेटेड नियरली 3 लाख करोड़ रुपए इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इन 2024। 3 लाख करोड़ का मतलब है $35 बिलियन। To put that in context, it is 1% of our GDP, 1% of our GDP, and as much as the railway budget, पूरे रेलवे का बजट। तो इसके अलावा टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जनरेट्स 85 मिलियन जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दिस इज 13.5% ऑफ ओवर ऑल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। शुड वी बी हैप्पी? हमें इससे संतुष्ट होना चाहिए या इसमें और भी जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है? जो क्वेश्चन जो मेरा है, डू यू थिंक टूरिज्म कैन बिकम वन ऑफ द India's top 3 generators of jobs and foreign exchange by 2047? I just wish to take out the can word from your question. It will become. देखिए, टोटल टूरिज्म में द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर इनटू the national GDP, as you mentioned, it is 1%. 1% is the foreign currency only. Correct, only, yes. I'm not speaking about foreign currency. Yeah. The contribution of tourism into national GDP is little less than 6%. Okay. And if I consider globally, then the contribution of travel and tourism sector into the global economy is 10%. So our aim and target, which has been given to us by the Prime Minister, is that by 2047 we have to arrive at the global benchmark. Okay. अब अगर इसको मैं एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखूं तो टूरिज्म की इकोनॉमी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। डिसेंट्रलाइज, एक टूरिस्ट आता है, एक होटल में रुकता है, होटल का स्टाफ होता है, ₹1 हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में खर्च किया जाता है, वो नंबर ऑफ जॉब जितने क्रिएट करता है उतना किसी इंडस्ट्री में नहीं होता। टूरिस्ट जो है वो टैक्सी में जाता है, उसके ड्राइवर को रोजगार मिलता है, टैक्सी ओनर को मिलता है, वो क्राफ्ट खरीदता है, वो जो है रेस्टोरेंट में जाता है, स्ट्रीट शॉप पे जाता है, स्ट्रीट वेंडर से कुछ खरीदता है। ऐसे सारे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को अगर हम जोड़ते हैं तो अगर हम 10% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर जिस दिन होंगे उस दिन हम एग्रीकल्चर के बाद में दूसरा जॉब क्रिएट करने वाले सेक्टर बन जाएंगे। विल लीव बिहाइंड द MSME आल्सो। दैट्स ग्रेट। सो हम उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2030 तक हमको हर हालत में 7% का कंट्रीब्यूटर हो, उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से भारत में डिमांड बढ़ रही है टूरिज्म की, मुझे पूरा भरोसा है कि हम 2030 के साल तक 7% के आंकड़े को क्रॉस कर पाएंगे। आपने बहुत ही कन्विक्शन के साथ ये कहा है कि 2030 की बात की और 2047 की भी बात की है आपने। So just to give the scale of what you are going to achieve to our viewers, I'll give some more numbers. Right now we get about 10 million tourists, foreign tourists annually. And just for comparison, Thailand gets about 35 million
इवन सिंगापुर गेट्स 16 मिलियन. तो जो पोटेंशियल जो है वो इट इज जस्ट एनॉर्मस इफ वी आर एबल टू गेट अवर एक्ट टुगेदर. इट इज एनॉर्मस. लेकिन एक बीच में रुक करके कहता हूं, थाईलैंड की आप बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं. यहां अगर हम कंपेयर करते हैं टूरिज्म सेक्टर को जी, तो ये कंपैरिजन एप्पल और ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो जाता है. आई वाज एक्सपेक्टिंग टू से दैट. क्योंकि उनके पास में डोमेस्टिक टूरिज्म के नाम पे कुछ भी नहीं है. अगर मैं भारत के डोमेस्टिक टूरिज्म की, आपने कहा कि भारत में कुल मिलाकर के 1 करोड़ विदेशी सैलानी आए. अगर मैं इंटरनेशनल अराइवल्स की बात करूं तो इट गोज अप टू 2 करोड़, बिकॉज जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, जो ओसीआई होल्डर्स हैं, जो एनआरआईज हैं, वो जब आते हैं, वो ट्रैवल जो है उसको भी अगर मैं जोड़ता हूं तो 2 करोड़ से बाहर चला जाता है. लेकिन भारत में पिछले 1 साल में डोमेस्टिक ट्रैवल, नंबर ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल, और जब मैं नंबर ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करता हूं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी एक पर्पज से गया होगा, घर से निकल करके बिजनेस के लिए गया होगा, लीजर के लिए गया होगा, ट्रीटमेंट के लिए गया होगा, वेडिंग के लिए गया होगा, स्पिरिचुअल पर्पजेस के लिए गया होगा. वो घर से बाहर निकल करके गया, ट्रैवल करके किसी दूसरे शहर में 1 रात एटलीस्ट वहां रुक करके वापस लौटा. जी, इसको अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो दैट नंबर कम्स टू 294 करोड़. मैंने 300 करोड़ लिखा था, लेकिन आई विल टेक 294 करोड़. तो 294 करोड़, और उस 294 करोड़ में 66 करोड़ लोग जो कुंभ में गए थे उनको हमने जोड़ा नहीं है. बिल्कुल. तो इसलिए भारत के इस आंकड़े को, भारत की इकोनॉमी में अगर आप कोई भी व्यक्ति दर्शन करने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में जा रहा है तो उसको हम टूरिस्ट है या ट्रैवल की इकोनॉमी है इससे नकार नहीं सकते, उसको जोड़ना ही पड़ेगा. बिल्कुल. इसलिए अगर हम थाईलैंड के 3.5 करोड़ से या सिंगापुर के 2.5 करोड़ से या दुबई के 2.5 करोड़ से भारत की तुलना करेंगे वो कभी होगी नहीं. Correct. लेकिन जिस तरह से भारत का दृश्य बदल रहा है, पूरी दुनिया के सामने भारत का दृश्य बदल रहा है, भारत की छवि बदल रही है, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भारत का नैरेटिव ग्लोबली नए सिरे से गढ़ा है, भारत एक बार फिर दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन रहा है. और मैं आपको भरोसे के साथ में कहता हूं कि ये नंबर हम 2047 तक, जो आज हम आंकड़ा 10 मिलियन का कहते हैं, इसको हम 100 मिलियन तक लेकर के जाएंगे. तो आपने मेरा ये क्वेश्चन आंसर कर दिया कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी विद द नंबर्स दैट वी हैव ऑलरेडी. यू आर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यपद्धति है कि हम सेटिस्फाई हो भी नहीं सकते. कंटिन्यूअसली आप एक गोल अचीव करो तो उससे दुगना बड़ा गोल आपके सामने हमेशा ही होता है कि इस पे आप काम करना है. So what do you think is the single, if you were to identify one reason why we were held back? आपने बात किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और अवेलेबिलिटी की बात की. अगर एक शब्द में बात करना हो तो मैं कहूंगा कि भारत की छवि, भारत को देखने का नजरिया, भारत के प्रति लोगों की जानकारी, देश दुनिया की जानकारी, देश दुनिया को भारत के प्रति जानकारी, उसका अभाव था. जी, मैं सामान्य, क्योंकि मुझे बहुत वर्षों तक दुनिया के दूसरे देशों में जाने का अवसर मिला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से पहले. आपने भी पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों को ट्रैवल किया, आपका अनुभव होगा. आज से 10-15 साल पहले तक आप दुनिया के किसी देश में जाकर के, अगर कोई व्यक्ति आपको शक्ल से, सूरत से ऐसा लगे कि ये भारतीय है, आप उसको पूछेंगे तो वो अपने आप को भारतीय बताने में ही हेजिटेट करता था. ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज एन एशियन. फिर दूसरी बार पूछोगे एशिया में कहां से हो, तो देन ही विल से दैट आई एम एन इंडियन. अगर आप किसी गोरे व्यक्ति को, किसी विदेशी व्यक्ति को ये बताएंगे कि आई एम एन इंडियन एज इफ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसके मन में वो उसका जवाब होगा इंडिया, ओ मिस्टर गांधी. सो भारत की छवि जो है, भारत की पहचान गांधी जी तक समाप्त हो गई थी, उसके नीचे नहीं आई थी. लेकिन आज मैं भरोसे से एक बात कहता हूं, आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, छोटे से कैरेबियन आइलैंड से लेकर के अमेरिका तक, और अमेरिका से लेकर के और साउथ एशिया तक, वेस्ट एशिया तक, कहीं भी चले जाइए, आप कहिए कि मैं भारत का हूं, तो उसके मुंह पर बिना का स्माइल दिखेगा, ओ मिस्टर मोदी. तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हमको लेवरेज करता है कि, और मुझे यह कॉन्फिडेंस देता है, मेरा कन्विक्शन वहां से आता है कि हम इस 10 करोड़ को 100 करोड़ तक लेकर के जाएंगे. भारत की आने वाले समय की आर्थिक संपन्नता और भारत में जिस तरह से विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास हो रहा है, ये भारत के इस सब का जो बेनिफिशियरी सेक्टर अगर कोई होगा वो टूरिज्म सेक्टर होगा. So you think we should treat tourism, and we have not treated, I think, tourism as a strategically important sector, just like IT is.
Should tourism also be treated in that same manner? देखिए, अगर कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं मिला होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में बहुत तेज गति के साथ में काम किया है। भारत के सारे मिशंस को यह कहा गया है कि मिशंस की परफॉर्मेंस की जो असेसमेंट का पैरामीटर होगा, जो जिन पैरामीटर्स पे असेस किया जाएगा, उन पैरामीटर्स में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होगा कि उस देश से कितने टूरिस्ट हिंदुस्तान में आ रहे हैं। सो नाउ मिशंस आर ऑल्सो ऑन जॉब एंड एवरीबडी इज ऑन हिज टोज कि अब उस पर वो काम करें। एक ये पूछना था कि we talked about France and Italy and other countries like Portugal, which are just enormously successful in bringing tourists to themselves, to the country. What can we learn from them? See, the creative economy and overall stakeholders participation. If you travel to, you must have traveled in Switzerland also and a couple of other countries. You go to Switzerland, every citizen who come across to, वो आपको चीयरफुल तरीके से आपका स्वागत करेगा, ऐसा आपको लगेगा। हर जगह आपको जो है आपको लगेगा कि दैट इनका कितना अच्छा सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी है। हमारे यहाँ बेशक अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, लेकिन वो परंपरा व्यवहार में हर भारतीय आने वाले पर्यटक के दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण से देखे, ये अगर हम उनसे सीख करके हम उस लेवल पर लेकर के आ जाते हैं तो भारत जैसा दुनिया में कोई नहीं। क्या बात है। भारत इनक्रेडिबल भी है, वो इनक्रेडिबल इंडिया जो है वो इनएविटेबल इंडिया बन जाएगा। जी, अब आप बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात कह दी, एंड आई फील एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू टूरिस्ट दैट वी सी इन अदर कंट्रीज। Let's move on to the domestic tourism. And not just domestic tourism, but what we have in our hands. Most critics of the way we conduct our tourism, we say that we celebrate our heritage sites very well, but we often fail to preserve these cities around it. मैं मानता हूं इसको, ये लीगेसी इश्यू था। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इन सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने, प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी जिसके पास में है, उसके सामने खड़ी इस तरह की चुनौतियों को देख करके एक कानून भी बनाया गया, और वो कानून के तहत उसके 100 मीटर रेडियस और उसके आउटर 200 मीटर्स मींस टोटल 300 मीटर्स रेडियस तक हम इसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करें, उसके वहां किसी तरह का इंक्रोचमेंट न हो, वहां किसी तरह का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट न हो। प्रोहिबिटेड जोन 100 मीटर में तो कुछ भी अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी रेगुलेटेड एरिया में भी, ताकि उस मॉन्यूमेंट की, उस जगह की जो है सैंक्टिटी किसी तरह से डाइल्यूट हो, उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन पहले से जो कुछ हो चुका है वो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, आपने ठीक कहा, जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट का इंडेक्स है, जिसमें भारत अभी 39 रैंक पर खड़ा है। 2014 में हम बहुत पीछे होते थे, अब धीरे धीरे करते करते हम 39वें रैंक पर पहुंचे। अगर उसके रैंकिंग के पैरामीटर्स को उठा करके देखें तो उसमें से केवल 18% पैरामीटर इंडिकेटर ऐसे हैं जो डायरेक्ट टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास में है। अच्छा, शेष सारे जो है उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट, उस शहर में जहां जाता है, उस शहर में या हवाई अड्डे से उतर करके, रेलवे स्टेशन से उतर करके वहां होटल तक जाना, होटल में ठहरना, वहां का रिक्शा, वहां का केबिन, वहां का वहां की क्लीनलीनेस, वहां का सैनिटेशन, वहां का टूरिज्म टूरिस्ट एमेनिटीज, ये सब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो सब जुड़ करके जो है एक WTTI में आपकी रैंकिंग को तय करता है। और उनके चलते हुए हमारे डेस्टिनेशंस को लेकर के हमारे यहाँ कोई चुनौती नहीं है। हमारे डेस्टिनेशंस की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने जिस तरह से एड्रेस किया है, टूरिस्ट की दृष्टिकोण से वहां जो आवश्यक कम्युनिटीज है उनको जिस तरह से स्वदेश दर्शन में, प्रसाद योजना में, जो है चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट में जिस तरह से भारत सरकार ने संसाधन देकर के उनको डेवलप किया, हम ग्लोबली एट पार लगभग पहुंचे।
लेकिन जो ओवरऑल जो पैरामीटर इंडिकेटर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ पैरामीटर इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर अभी भी हमको काम करना के बाकी है। अब आप देखिए 2014 से पहले भारत में सैनिटेशन भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। ओपन डेफिकेशन भारत में जो है 62% पॉपुलेशन गांव की करने को मजबूर थी, वो हमको निगेटिव मार्किंग कराता था। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं था, वो हमारे लिए निगेटिव मार्किंग थी। हमारे यहाँ शहरों में ओवरऑल क्लीनलीनेस पे कोई ध्यान नहीं देता था, वो हमारे लिए एक निगेटिव मार्किंग था। हमारे यहाँ डेस्टिनेशंस पर पैसेंजर एमिनिटीज, टूरिस्ट एमिनिटीज नहीं थी, वो हमारे लिए एक निगेटिव मार्किंग थी। हमारी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती थी, वो हमारे लिए निगेटिव मार्किंग था। लेकिन इन सब विषयों पर जब हमने काम करना शुरू किया, ओवरऑल काम हुआ। प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को समझा कि केवल और केवल डेस्टिनेशन को ठीक करने से नहीं होगा, ओवरऑल सब चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। तो इस होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब काम किया तो आज हम 39th रैंक तक पहुंचे। और हमने अब एक नए सिरे से, क्योंकि ये सारे विषय राज्य सरकारों को करने के, तो हमने नए सिरे से राज्य सरकारों के साथ में ऐसे डेस्टिनेशंस जो हैं आइडेंटिफाई करके उनकी एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ में बैठ करके हम इन सब विषयों पर उनको संज्ञान में ला करके उस पर ठीक से सुधार करें, इस पर काम करना, नए अप्रोच के साथ में काम करना शुरू किया। मुझे लगता है इसका प्रभाव आने में थोड़ा समय लगेगा। Would you agree with me that we Indians we don't appreciate our history as much? अब आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब आप निजामुद्दीन के पास चले जाइए, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, पुराने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपना घर बसाया हुआ है। एंड आप हौसखास चले जाइए, बहुत बड़ी बावड़ी है वहाँ पर, उसके बिल्कुल लग के वी हैव हाउसेस, पीपल आर हैंगिंग देयर क्लोथ्स एंड आई डोंट बिग्रज देम, इट इज देयर होम। देखिए, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया कि वहाँ सैंक्टिटी मेंटेन करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। जो स्टेट के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी आपने बात की, वो प्राथमिक रूप से स्टेट की जिम्मेदारी है। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि भारत में इसको लेकर के कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस तरह के अतिक्रमण हुए या इस तरह के जो है बिल्कुल सटा करके इस तरह के मकान बन गए, इस तरह की परिस्थितियां हो गई। एकदम करीब से कोई मकान बन जाए, मुझे लगता है कि कोई बड़ी चुनौती नहीं। दुनिया के बहुत सारे देशों में जाकर के देखिए आप, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के बिल्कुल पास में भी इस तरह के बहुत सारे ड्वेलिंग्स बनी भी होंगे। लेकिन क्योंकि वहां एक, जो मैंने कहा कि एक सामाजिक चेतना, एक सोशल अवेयरनेस है कि ये मॉन्यूमेंट हमारे शहर के लिए एक इकोनॉमिक जनरेटर है, इकोनॉमिक पावर हाउस है, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसके बाद चारों तरफ वातावरण जो है वो बेहतर रहे। तो वो पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम उसके लिए काम करता है। तो मैंने पहले भी आपसे चर्चा में कहा कि अभी हमको इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ भी रहे हैं, देश में भी इस तरह की चेतना आ रही है। लेकिन अब डेस्टिनेशन जो है उसको मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन मैनेज करना उस डेस्टिनेशन की जिम्मेदारी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया हमको एक नया मार्गदर्शन दिया, एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन मैनेजमेंट अथॉरिटीज बननी चाहिए, जो उसके ओवरऑल पूरे डेस्टिनेशन के कंप्लीट इकोसिस्टम को जो है सिंक्रोनाइज करने, सिंथेसाइज करने की चिंता करे। और इसका बेहतरीन मॉडल अगर कोई है तो वो जो नया डेस्टिनेशन भारत में बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया में जो एकता नगर बना, एकता नगर की अथॉरिटी जो है उसका उदाहरण है। हालांकि एकता नगर की परिस्थितियां डिफरेंट है, वहां कोई इस तरह का हैबिटेशन नहीं है, जो कुछ भी है वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हैविंग लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, हमने देश के सब राज्यों को अपने प्रमुख डेस्टिनेशंस पर इस तरह के डीएमओज बनाने के लिए आग्रह किया है। अभी हाल ही में हमने 2 सप्ताह पहले इस तरह की मीटिंग की, जिसमें हमने राज्यों के सेक्रेटरीज के साथ बैठ करके इस पे डिटेल प्रेजेंटेशन किया, उनसे क्यों आवश्यक है, कैसे किया जा सकता है, उसका रोड मैप क्या होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, उनके पास किस तरह के पावर होने चाहिए, किस तरह के उनके पास में क्वासी जुडिशियल जो है वो पावर्स होनी चाहिए। इन सबको स्टेट के साथ में शेयर किया। मुझे खुशी है कि इस पर स्टेट्स ने बहुत एंथुजियाज्म के साथ में काम भी किया है और बहुत इसको जो है उत्साह के साथ में सब स्टेट्स ने इसको स्वीकार किया, हम अपने डेस्टिनेशन पर ये बनाएंगे। अच्छा। मुझे लगता है ये जब बनेगा तो एक ओवरऑल हमारे सामने उदाहरण है, इंदौर में सारे शहर की
पब्लिक ने तय कर लिया कि हमको शहर को सबसे साफ शहर बनाना है, पिछले इतने सालों से इंदौर नंबर 1 क्लीन सिटी बन रहा है, तो जब तक स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ये जन आंदोलन नहीं होगा, तो इसको एक जन भावना को साथ जोड़ करके उस डेस्टिनेशन की चिंता, परवाह, उसकी सब जो है वो आम जन करे, इसके लिए डीएमओज बनाने पे हम काम कर रहे हैं। I know it is still early days, but yet DMOs, what have you envisaged? How many DMOs will be in the entire country, and who will head them? Who will, you said state governments, but at the local level, who will be managing them? सी डीएमओज को राज्यों को बनाना है। अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ अलग अलग तरह की जो है कल्पना की है। अच्छा। अभी जब हम लोग जिस मीटिंग की चर्चा मैंने की, जब हम उसमें बैठे थे, तो राज्यों ने अपनी तरफ से भी उसमें जो है विचार साझा किए। उन्होंने जिस तरह से कल्पना, कुछ ने इंडिपेंडेंट किसी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को उस शहर का, ऐसे अभी मैं मानता हूं कि एक बार हम देश के 100 जगह से ऐसा शुरू करें, तो उसमें जो है जो मोस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है वहां से शुरू करें, तो उन जगहों पर कुछ जगह पर सीनियर ब्यूरोक्रेट को इंडिपेंडेंटली इस तरह का अधिकारी बनाया गया, कुछ जगह पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस तरह का डीएमओ बना करके उसके लिए एम्पावर किया गया है। हर स्टेट ने अपनी अपनी तरह से अपने अपने जगह पर इस तरह के फ्रेमवर्क को एम्फेसाइज किया है। So there is no one size fits all वो हो भी नहीं solution. सकता। देखिए, हर देश में, भारत जैसे विविधताओं से भरे हुए देश में, भारत जैसी विविध परिस्थितियों से भरे हुए देश में एक ही जैसी व्यवस्था सब जगह पर ऐसा संभव नहीं है। जी. Let's take a 30,000 foot view of the whole tourism sector. Do you think India should focus more on luxury tourism or mass tourism? Because mass tourism generates more employment. Luxury is very specific. देखिए, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, और भारत जैसे देश में कभी इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। नीश टूरिज्म भारत में अपने आप में एक जो है एक वर्टिकल है। हम जिस तरह के नए एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, भारत में जिस तरह के एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं, आज हमारा जो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल है वो कम होने का एक बड़ा कारण हमारे यहाँ पर भारतीयों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ना भी है। सी, जो दुनिया का ट्रैवलर ट्रैवल करता है, अगर उसको हम देखें तो वो 3 लेयर्स में होता है। एक नीश टूरिस्ट है, जो लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी टूरिस्ट है, जो प्राइवेट जेट में आता है या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करके आता है, अल्ट्रा हाई एंड होटल्स में ठहरता है, जयपुर के रामबाग पैलेस में 1 लाख रुपया पर डे पे करता है, या उदयपुर के रफाल में एक जो है उस लेवल पर पे करता है और हैप्पीली पे करता है। अगर वो जो है अबरकॉम्बी, जो दुनिया का एक लग्जरी ट्रैवल कराने वाली एजेंसी है, वो सियाटल से लोगों को लेकर के आती है, टाइगर ट्रेल पर ट्रैवल कराती है, हर होटल का किराया वो इतना जो है वो $1,000 किराया पे करते हैं, एक दिन का एक्सपेंडिचर करते हैं। ऐसा वो सेगमेंट 10-12% का होगा। नीचे की बॉटम लेयर जो है वो 20-25% की है, वो बैकपैकर्स की है, जो आते हैं वो देश में रहते हैं। शेष जो सबसे बड़ा कॉलम है वो मिडिल क्लास ट्रैवलर है, जो 2 साल 3 साल बचत करता है, पैसे बचाता है, फिर प्लान करके टूर करता है, ट्रैवल करता है। उसकी अपेक्षा सामान्यतः यही रहती है, क्योंकि मेरा अनुभव इस इंडस्ट्री के साथ में बहुत पुराना है, इसलिए मैं कह सकता हूं उसकी अपेक्षा ये रहती है आज की तारीख में भी कि वो $100-125 में अपना जो है एक दिन का ट्रैवल करे। 7 दिन के लिए आया है, 15 दिन के लिए आया है, क्योंकि भारत में सामान्यतया दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ ट्रैवलर भारत में आता है, उसको हम अगर कंपेयर करते हैं तो थाईलैंड से तो हमको लगता है कि इंडिया में बहुत कम नंबर है, लेकिन नंबर ऑफ डेज स्पेंड को देखें तो हम थाईलैंड के एट पार पहुंच जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो आता है वो एटलीस्ट एवरेज 10+ नाइट्स के लिए ट्रैवल करता है। थाईलैंड में जो जाता है वो वीकेंड के लिए 2 दिन में जाता है और 2 दिन में जाकर के आ जाता है। तो एक ही ट्रैवलर, वहां नंबर बढ़ता है, हमारे यहाँ नंबर ऑफ डेज बढ़ते हैं, दे आर इक्वल। लेकिन जो विदेश से आने वाला मिडिल क्लास ट्रैवलर है, उसको थाईलैंड में भी, उसको दुबई में भी, उसको सिंगापुर में भी $100 में उसको ऑलमोस्ट एवरेज सारे ब्रांडेड 5 स्टार होटल्स में, मैं अल्ट्रा लग्जरी की बात नहीं करता कि बल्गारी जैसी होटल या सनराइज जैसी होटल्स की बात नहीं करता, लेकिन एवरेज जितनी भी 5 स्टार होटल्स हैं उसमें इसमें उसको रूम मिलता है। हमारे जितने भी हॉट डेस्टिनेशंस हैं, हिंदुस्तान के जो भी एस्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशंस हैं, वहां अगर कोई जाता है तो हयात की होटल में, ताज की होटल में, मैरियट की होटल में या इस श्रेणी की किसी भी होटल में जाता है तो उसका किराया 30,000 से लेकर के 50, 60, 70 हजार रुपए। यस। तब उसको
इकोनॉमिकली उसको लगता है कि ये ज्यादा ठीक है, मैं जो है 3 दिन 2 दिन की छुट्टी जा रहा हूं, 3 दिन की जा रहा हूं, मैं थाईलैंड चला जाऊं, तो उसका प्रेफरेंस वहां मुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इस किराए पे हमारे रूम्स खाली हैं, क्योंकि इंडियन ट्रैवलर की परचेजिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि वहां उस किराए पे भी हमको जगह नहीं मिलती, उसमें रूम नहीं मिल रहा। आज आप पहलगाम चले जाइए, पहलगाम के जो 5 स्टार होटल में आप चले जाइए, आपको 1 लाख रुपए रूम में रूम नहीं मिलेगा। आप खैबर में चले जाइए, गुलमर्ग में, वहां आपको जो है 50,000 रुपए में एवरेज पूरे सीजन में रूम नहीं मिलेगा। आप उदयपुर चले जाइए, आपको रूम नहीं मिलेगा। आप रणथंभौर चले जाइए, आपको रणथंभौर में सारे बड़े होटल आपको एटलीस्ट 2 दिन का पैकेज देंगे और 2 दिन का 1 लाख रुपए से कम चार्ज नहीं करेंगे। तो ये, और वो खाली नहीं है, फिर भी वहां जगह नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो कॉस्ट बढ़ी, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी के कारण से जो कॉस्ट बढ़ी, उस कॉस्ट ने एक तरफ जो है मिडिल क्लास फॉरेन ट्रैवलर को जो है के लिए एक अवरोध पैदा किया, और हमारी डिमांड क्योंकि कंटिन्यूअस बढ़ रही है, इसलिए हॉस्पिटैलिटी में नए रूम्स बने। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया निर्णय किया, हमने आग्रह किया और मैं अभिनंदन करता हूं उनका। उन्होंने कहा कि होटल का कोई भी स्टार होटल्स कोई भी बनाता है तो उसका इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज ए इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में लेकर के आ जाते हैं, जो मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जब आ जाता है, तो पहला बैंक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, बैंक का इंटरेस्ट कम हो जाता है और रीपेमेंट अवधि बढ़ जाती है। मैं अगर और इसको आपके दर्शकों के लिए इसको और ठीक से समझाने की कोशिश करूं, सामान्यतया एक होटल बनता है, एक 5 स्टार होटल, तो उसको बनने का 3 साल का पीरियड है। ठीक है, 3 साल कम से कम लगते हैं एक बनने में। अगर बैंक से लोन लेता है, बैंक 7 साल का उसको जो है एडवांस करता है, 3 साल बनने में लगे, 1 साल होटल को रोल ओवर करके कब जो है पूरा फंक्शनल होने में लगे, बचे हुए 3 साल में उसको रीपे करना है, वो कर नहीं पाता, दबाव बढ़ जाता है। अगर वही बैंक उसको 20 साल के लिए 25 साल के लिए लोन करती है तो नंबर ऑफ रूम्स बढ़ते हैं। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया। हमने सब राज्यों की पॉलिसीज को स्टडी किया और टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 को हमने पूरे राज्यों के साथ में एक ड्राफ्ट टूरिज्म पॉलिसी जो है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना करके साझा की। बेस्ट पॉलिसी बहुत सालों से जो है, जब स्वर्गीय भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते थे तब से लेकर के हमेशा राजस्थान की होती थी, मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी थी। जब हमने उन सब राज्यों के साथ में साझा किया, मुझे यहां बैठ के खुशी होती है कहते हुए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने राजस्थान को कहीं पीछे छोड़ दिया। अच्छा, आज अगर मध्य प्रदेश में आप जाकर के एक होटल 5 सितारा होटल बनाते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस और ट्रूली सिंगल विंडो क्लियरेंस, सारी क्लियरेंसेज एक जगह मिलती है, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया। उसके साथ साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30% सब्सिडी, कैश सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अगर 200 करोड़ रुपए कोई होटल बनाने के लिए निवेश कर रहा है तो 60 करोड़ रुपया उसको जो है सरकार उसको अपनी तरफ से होटल बनाने के लिए सब्सिडी दे रही, तब जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और उसका परिणाम देखिए आप, भारत का टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर रही है। और इन दोनों विषय जो प्रधानमंत्री जी ने किए और जो राज्यों ने इंसेंटिव देना शुरू किया, उसका परिणाम देखिए। ताज ग्रुप का पहला होटल ताजमहल मुंबई बना था। दूसरा रामबाग पैलेस जयपुर जो ताज मेंटेन करती है, वहां तक पहुंचने में 50 साल लगे। बिल्कुल, 50वें होटल तक पहुंचने में ताज को जो है फर्दर 50 साल लगे। और आज ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हर महीने में 4.5 होटल्स नए असाइन कर रहे हैं, साल में 50 बना रहे। सेम स्थिति मैरियट की है, सेम स्थिति सारे जो है हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स की है। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है हिंदुस्तान में ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की हो रही है। नए वर्टिकल्स जुड़ गए हैं। आज वेडिंग हिंदुस्तान में इतना बड़ा टूरिज्म हो गया है, डेस्टिनेशन वेडिंग। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने फिर आग्रह किया है कि देश में शादी करो, और एक और नए बूम की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। राइट, दिस गोज बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर दैट दिस टूरिज्म जो इंडस्ट्री जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, एंड इट इज हाइडिंग इन प्लेन साइट कि हम लोगों को वी डोंट रियलाइज कि इतनी बड़ी पोटेंशियल है टूरिज्म में कि ये मतलब देश की काया बदल सकती है। देखिए सारे राज्यों में मेरा इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिस्ट, बेशक
प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, इसको मात्र 2 साल हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सालों तक से मेरा इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रहा है। मैंने पिछले 40 साल के अपने अनुभव में कभी भी इस इंडस्ट्री में राज्यों के में इतना एंथुजियाज्म और इतना कंपटीशन नहीं देखा है। आज सुदूर नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों से लेकर के देश का हर प्रदेश, छत्तीसगढ़ बस्तर में टूरिज्म कैसे डेवलप हो, पोस्ट नक्सलाइट उन्मूलन उसके बाद में कैसे हो, उस पर छत्तीसगढ़ काम कर रहा है। देश का हर प्रदेश अपने यहां पर इस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके इस पर काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी जो पिछले बजट में घोषणा की, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की मीटिंग में भी कहा कि जो 50 ग्लोबल लेवल के आइकॉनिक डेस्टिनेशन हम बनाने पे काम कर रहे हैं, वो हर प्रदेश में एक ऐसा डेस्टिनेशन बने। और आने वाले कुछ सालों में जब ये डेस्टिनेशंस बनेंगे तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी और नया एक्सपीरियंस सभी राज्यों में लेकर के आएंगे, जो आने वाले समय में राज्यों में टूरिज्म के पोटेंशियल को और बढ़ाएगा। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक टूरिज्म because I think that is the real story. That is the real Indian tourism story more than the international. Although we are coming to that, but just one last question about the international thing. You know, there are perceptions, like you said, among foreign visitors. There are perceptions about India. Pollution is one which we didn't talk about. Overcrowding is one. Women's safety is another. How do we change that perception? परसेप्शन का वार दुनिया में सब जगह टूरिज्म इंडस्ट्री में चल रहा है। और परसेप्शन जो है, निगेटिव परसेप्शन बिल्ड करना भी अपने आप में एक कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी है। गोवा को लेकर के जिस तरह की अफवाहें फैलाई गई, उनको पीछे निकाल करके देखा गया तो उसकी रूट्स कहीं हमारे पड़ोसी देश में मिलती है। लेकिन ये जो है, हम अपने परसेप्शन को बनाकर देखिए, भारत में एक घटना होती है ना इस तरह की, हमारा सारा मीडिया उसको प्रोपोगेट करता है। एक कोई किसी टूरिस्ट के साथ में किसी तरह का हादसा हो जाए, घटना हो जाए, दुर्भाग्यपूर्वक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं आप इटली में आप गए होंगे, आपको कितने सारे अनुभव इस तरह के आ सकते हैं। आप अमेरिका में चले जाइए, न्यूयॉर्क छोड़ करके आपको एडवाइजरीज में लिखा हुआ आएगा कि आप जो है रात शाम होने के बाद में जो है सबर्बन रोड्स पे मत जाइए, मेन रोड छोड़ करके मत जाइए। आपको दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहां निगेटिव परसेप्शन नहीं बनता, क्योंकि वो वहां का मीडिया, वहां के लोग इसको नोइंग द फैक्ट कि इट कैन क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द नेशन, टू द नेशन, इसलिए वो नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ वो सेंस ऑफ अवेयरनेस भी नहीं है। धीरे धीरे ये डेवलप होगी जैसे जैसे हमारे देश विकसित हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये परसेप्शन बिल्डिंग जो है, और ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये देश के ये सारे स्टेक होल्डर्स का काम है, ये सबका काम है, इस पर होगा। पोल्यूशन बड़ी चुनौती है, मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन पोल्यूशन चुनौती कहाँ है? सिर्फ दिल्ली शहर में पोल्यूशन की चुनौती है। आप लद्दाख में कोई पोल्यूशन की चुनौती नहीं है, राजस्थान में कोई पोल्यूशन की चुनौती नहीं है। आप जो है नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, एज पायस एज दुनिया का कोई भी दूसरा देश है, वहां का है, लेकिन वो पोल्यूशन के का एक जिस तरह का एक नैरेटिव भारत के प्रति बना दिया गया दिल्ली के 2.5 महीने के पोल्यूशन को लेकर के, वो हमारे चिपक गया है। तो वो कैसे हम उसको हटाएं, इस पर सबको मिलकर के साथ मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। उसमें जितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की भी है, उनको भी जिम्मेदार होकर काम करना पड़ेगा। अब आते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म पे। 300 करोड़ डोमेस्टिक विजिट्स, टूरिस्ट विजिट्स इन 2024, मतलब कोई छोटा नंबर नहीं है ये, इट्स एन एस्टॉनिशिंग नंबर। अ लॉट ऑफ दैट इज एक्चुअली ड्रिवन बाय पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस टूरिज्म, अयोध्या, काशी, 4 धाम सर्किट जो हो गया, तो जो डोमेस्टिक टूरिज्म उससे बढ़ रहा है। सो डू यू थिंक इंडिया इज एंटरिंग इनटू अ न्यू ईरा ऑफ फेथ ड्रिवन टूरिज्म? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं इसको भी बैकग्राउंड में आपको लेके जाता हूँ। आपने सही कहा है, अगर पूरे 300 करोड़ के आंकड़े में देखेंगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का हमारा एक कंपोनेंट है, वो लगभग 15% के 20% के बीच में कहीं आता है। वो निश्चित रूप से बढ़ा है। अगर आंकड़ों की बात करें, काशी विश्वनाथ के टेम्पल में 2014 में कुल आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या वो लगभग 35-40 लाख के बीच में थी। ठीक है। और पिछले दिसंबर में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के 10 दिन में वो संख्या 40 लाख से ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई आस्था एकदम से बढ़ गई,
ऐसा भी नहीं है कि महाकाल लोक बन गया है इसलिए उसको देखने के लिए इतने सारे लोग आ गए हैं कि वो संख्या 6-7 करोड़ के बीच में एक साल के पहुंच गई है। पूरे साल भर की अगर 40 लाख को कंपेयर करूं तो 6-7 करोड़ तक पहुंच गई है पिछले साल। ऐसा इसलिए है, एक जो मैंने प्रारंभ में कहा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो बेहतर हुई, गरीबी की रेखा से लोग बाहर निकले, जेब में डिस्पेंसेबल इनकम हुई, सरकार ने जो योजनाएं धरातल पर उतारी उसका प्रभाव हुआ। एक सामान्य गरीब व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलता है, पहली बार जब उसके पास में पैसा होगा भारत में, वो सबसे पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएगा। वो अपने बूढ़े माँ बाप को दर्शन कराने लेके जाएगा, वो अपनी पत्नी को दर्शन कराने लेके जाएगा, क्योंकि भारत धार्मिक आस्था पर चलने वाला देश है, मान्यताओं पर चलने वाला देश है। वो सबसे पहले घर से निकल करके जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें इजाफा होगा। लेकिन भारत इतनी लेयर्ड वाली सोसाइटी है, जो लोग ये दर्शन कर चुके हैं उनके लिए सेकंड डेस्टिनेशन क्या है, सेकंड एस्पिरेशन क्या है? जो डेस्टिनेशन एस्टेब्लिश डेस्टिनेशन है, बिल्कुल, शिमला होगा, मनाली होगा, ऊटी होगा, ऐसे डेस्टिनेशन जो सुपरिचित हैं, पिछले कई जो है दशकों से, सदियों से सुपरिचित हैं। उस व्यक्ति ने जो जिसके पास पहली बार इस तरह की अपॉर्चुनिटी, उसने सुना है कि मेरा पड़ोसी जो है या मेरा रिश्तेदार जो है वो परिवार शिमला गया था, मुझे भी शिमला जाना है, इसलिए शिमला पे बड़ा दबाव बढ़ रहा है। इसलिए क्योंकि ऐसे जाने वाले लोगों की संख्या शिमला में बहुत बढ़ गई, और जब ये नंबर बढ़ता है तो वहां उन जगहों पे दबाव बढ़ता है। अब जिन लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस कर लिया, उससे ऊपर की जो सोसाइटी है हिंदुस्तान में, उसका नंबर भी बढ़ा है। बिल्कुल, उन लोगों ने नए एक्सपीरियंस ढूंढना शुरू किया। वो जंगल बेस्ड टूरिज्म पे जा रहे हैं, वो नेचर बेस्ड टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वो वेलनेस टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वो स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं, वो एडवेंचर की टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर लिया है वो अब तुलना करते हैं कि हमको भारत में जाना चाहिए या विदेश में जाना चाहिए, और कई बार उनको लगता है कि हमको विदेश में जाना सस्ता है, तो वो विदेश जाने के आकर्षण के चलते हुए वो विदेश में जाते हैं। तो भारत का आउटबाउंड टूरिज्म भी बढ़ रहा है। ये जिन देशों की आप चर्चा करते हैं, थाईलैंड की बात करें या दुबई की बात करें या सिंगापुर की बात करें या मालदीव्स की बात करें, सब उन देशों का टूरिज्म जो है ना, उसकी बैकबोन भारतीय ट्रैवलर है। हाँ, तो भारत की इकोनॉमी बढ़ने का लाभ भारत को भी हुआ है, दूसरे देशों के टूरिज्म को भी हुआ है। हमको भारत में एक इस तरह से एक्सपीरियंसेस नए क्रिएट करना पड़ेगा, जिस पर हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं कि भारत से बाहर जाने वाले लोगों का आकर्षण कम हो। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले अपना देश देखो, देखो अपना देश, फिर आप दुनिया के दूसरे देशों में जाओ। उसका कैंपेन का बहुत लाभ हुआ, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दूसरा एक विषय और आपके दर्शकों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, जैसे जैसे भारत ने आर्थिक दृष्टि से प्रगति की, पिछले वर्षों में जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो किया, जिस तरह से भारत की छवि बदली, इस छवि बदलने से विश्व भर में भारत की छवि में प्रभाव पड़ा, भारत के प्रति नैरेटिव बदला, ये तो हुआ ही। लेकिन भारतीयों के लिए भी, और विशेष रूप से जो न्यू जेन इंडियंस हैं, जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके लिए भी भारत और भारत की संस्कृति में, भारत की मान्यताओं में श्रद्धा बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है। जो व्यक्ति पहले केवल ये मानता था कि भारत गरीब देश, भारत गंदगी से हटा हुआ देश, भारत भिखारियों का देश, हमारे आदमी को भी यही लगता था, इसलिए उसको लगता था यार भारत के बजाय कहीं और जाना चाहिए। आज उसको जब भारत साफ सुथरा दिखता है, आज उसको जब वर्ल्ड क्लास रेल भारत में चलती हुई वंदे भारत दिखती है, अमृत भारत दिखती है, जब उसको जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड के हाईवेज उसको दिखाई देते हैं, जब भारत के एयरपोर्ट स्टेशंस उसको दुनिया के जैसे दिखाई देते हैं, तब वो भारत देखने के लिए प्रेरित होता है। तो अभी जो नई जनरेशन जो भारत की है, उसका भारत के प्रति आकर्षण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। बहुत तेजी के साथ में भारत की संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ रहा है। बहुत तेजी के साथ में भारत के सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति सम्मान बढ़ रहा है, आस्थाओं के प्रति सम्मान बढ़ रहा है। ये सब अल्टीमेटली जो है टूरिज्म में कन्वर्ट होने वाला है। इसका बेनिफिशियरी भी पर्यटन क्षेत्र होगा। आपने अभी बात की शिमला के ऊपर जो प्रेशर जो पड़ रहा है वो ओवर टूरिज्म है बेसिकली। यूरोप हैज वोकन अप टू दैट फैक्ट, अब इंडिया भी फेस कर रहा है। डू यू थिंक वी शुड, आर यू इन फेवर ऑफ लिमिटिंग पीपल इन इको सेंसिटिव एरियाज? सी, हमने जो है पर्यटन में इस चुनौती को सामने रखते हुए हमने सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। और जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ये सब चीजें उसमें आ जाती है। इट्स ओवरऑल आर्चिंग फ्रेमवर्क।
भारत सरकार ने यह तय किया कि भारत सरकार द्वारा जिस किसी भी परियोजनाओं को हम राज्यों को हैंडहोल्डिंग करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, उसमें जो कंसिडरेशन के जो पैरामीटर्स होंगे उसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर सस्टेनेबिलिटी भी होगा। हमने जो प्रधानमंत्री जी के जिस विजन की मैंने बात की, 50 नए डेस्टिनेशन बनाने की बात की है, उसके पीछे भी भाव जो है वो डिकंजेशन है। अगर शिमला हिमाचल प्रदेश में अगर कंजेस्ट हो गया तो हम कैसे शिमला के पैरेलल हाइट्स पे 2 या 3 नए डेस्टिनेशन बना दें ताकि शिमला का प्रेशर कम हो जाए। जी। हालांकि भारत में जिस तरह से मैंने कहा कि इकोनॉमी बढ़ रही है, जितने एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं, ये जितने हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं जाने वाले, लेकिन फिर भी डिकंजेशन और सस्टेनेबिलिटी दोनों हमारा प्रायोरिटी है। इट लुक्स लाइक यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ऑन योर हैंड्स। यस, इट इज। 2019 में टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 17 साइट्स को आइडेंटिफाई किया था 12 क्लस्टर्स में फॉर डेवलपिंग आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स। उसका क्या है? देखिए, मैंने आपको जो कहा उसको फर्दर हमने एक्सपैंड कर दिया। अच्छा, उसको और एक्सपेंड हमने किया अब है। 50 नए ग्लोबल स्टैंडर्ड के आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बनाएंगे, वही उस पर काम करना शुरू कर दिया। जी जी। एक महत्वपूर्ण सवाल है, एएसआई के करीब 4000 साइट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर एंशिएंट साइट्स, वेरी फ्यू आर ब्रिटिश इरा साइट्स। तो अब ये होता यह है कि ये जो ब्रिटिश इरा साइट्स हैं ये नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। जैसे पटना में जो कलेक्ट्रेट जो था उसको वो डिमोलिश हुआ। तो डोंट यू थिंक दैट देयर शुड बी सम फोकस ऑन दीज साइट्स आल्सो व्हिच कैन आल्सो बिकम टूरिस्ट डेस्टिनेशन? देखिए, क्योंकि भारत गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, जिस तरह से भारत सरकार के अधीन काम करने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपने नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आपने जैसा चर्चा की 3600 से कुछ ज्यादा है, उन सारे मॉन्यूमेंट्स के अतिरिक्त देश के लगभग हर राज्य का अपना जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है जी। और उस हर राज्य ने अपने ऐसे सारे असेट्स जितने भी हैं उन सबको नोटिफाई कर रखा है। उनकी जिम्मेदारी, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी राज्यों ने ले रखी है। राज्यों में बहुत सारे किले ऐसे हैं, राज्यों में बहुत सारे ब्रिटिश टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसको राज्य ने अपनी पुरातात्विक संपदा घोषित कर रखा है और उसके ऊपर उसके संरक्षण की जिम्मेदारी राज्यों की है। राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से उस पर काम करते हैं और अपने ऐसे पुरातात्विक संपदाओं के संरक्षण के लिए काम करते हैं। एक्चुअली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने खुद ही कहा था कि ब्रिटिश इरा जो साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए, ऑल्दो दे डोंट फॉल अंडर एएसआई, तो अलग से राज्यों को उनको प्रिजर्व करना चाहिए। इट ऑल्सो रिकमेंडेड प्रिपरेशन ऑफ एन इन्वेंटरी ऑफ नॉन एएसआई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स एट रिस्क। तो उसका सरकार, जैसा मैंने कहा, क्योंकि वो राज्यों का विषय है, राज्य सरकारों के पास में उसकी सूची है, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी राज्यों के पास है। और मैं ये मानता हूं कि ऐसे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिटिश इरा के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स स्टेट्स में जैसे हैं, उन सब की सूची राज्यों के पास में। ये हो सकता है राज्यों की प्राथमिकता में, राज्यों के वहां पे जो है उनके कंजर्वेशन पर कितना सिंसियरिटी के साथ कौन एफर्ट्स कर रहा है, ये अगर तुलनात्मक हो सकता है। लेकिन इन्वेंट्री मुझे लगता है सब जगह पे सभी जगहों की होगी। दूसरा, क्योंकि आजादी को अब 75 साल हुए हैं, 100 साल पुरानी सामान्यतः संपदाओं को हम जो है हेरिटेज प्रॉपर्टी ऐसा मानते हैं। जब एएसआई बनी, जब देश आजाद हुआ, उसके बाद से राज्यों में बहुत सारी संपत्तियां ऐसी थी जिनको उस समय तो बने हुए 20, 30, 40 साल हुए होंगे, तो उस समय वो उस लिमिट पे नहीं आती होगी जो ब्रिटिश इरा प्रॉपर्टीज थी वो। लेकिन आज अब 75 साल बीत जाने के बाद में जो है वो अब उनको भी संरक्षण की आवश्यकता है। बहुत सारे शहरों के कलेक्ट्रेट्स होंगे, बहुत सारे शहरों के न्यायालय होंगे, बहुत सारे शहरों के ऐसे हॉस्पिटल बिल्डिंग्स होंगे जो आज से 100 साल, 125 साल पहले बने होंगे। रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा जो ब्रिटिशर्स के आखिरी 50 साल के ड्यूरेशन में बना होगा। लगभग देश के हर प्रिंसली स्टेट ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए थे जो आज जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। कुछ राज्य उस पर काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो लोग भी उस पर काम करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इस दिशा में अभी राज्यों को और गंभीरता के साथ में अब कदम उठाने का समय आ गया है। जी। एक सवाल है, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही एम्बिशियस कल्चरल प्रोजेक्ट है।
कितना हुआ है इस काम, इसमें काम कितना हुआ है, जरा स्टेटस रिपोर्ट देंगे उसके बारे में। नॉर्थ ब्लॉक तो फुली वेकेट हो चुका है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत दूरदर्शी दूरगामी विजन था कि हमारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं दोनों नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की, इनको हम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में कन्वर्ट करें। जो आज दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम लूर फ्रांस का है, हम उससे भी लगभग 1.5 गुना एग्जीबिशन एरिया का जो है म्यूजियम में, ये दोनों म्यूजियम जब पूरे हो जाएंगे तब हो जाएंगे। ये एक परिकल्पना होने के साथ ही, क्योंकि इस तरह की इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स को म्यूजियम स्पेस में कन्वर्ट करने में फ्रांस की जो है वो एक्सपर्टीज थी। जो लूर का म्यूजियम है उसके लिए भी कहा जाता है कि वो कभी उनकी जो है इकोनॉमी डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग हुआ करती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से फ्रांस के साथ में हमने टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज का, एक्सपर्टीज के एक्सचेंज का G2G एक एग्रीमेंट किया। फिर लगभग 1 साल तक उनके साथ में काम किया। उन्होंने जो है अपने अनुभव के आधार पर हमको कुछ विषय साझा किए। नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग पूरी तरह से खाली होकर जो है हमें मिली है। साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो ऑफिस खाली कर दिया, रक्षा मंत्री जी ने कर दिया है, विदेश मंत्रालय शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी वो कुछ चीजें वहां से शिफ्ट होना बाकी है, जिसके बाद में लगभग 2-3 महीने में हमको मिल जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि पिछले इस 100 साल के कालखंड में इन बिल्डिंग्स में बहुत सारे इंटरनल अल्टरेशंस कर दिए गए थे। कहीं पार्टीशन बना दिया, कहीं बाथरूम बना दिया, कहीं एयर कंडीशनर्स के लिए कुछ बना दिया, कहीं स्टोरेज बना दिया, किसी ने अपने चैम्बर के अंदर से चेंज कर दिया, कहीं ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। अभी हम पहले तौर पर बिल्डिंग को ओरिजिनलिटी पे रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका टेंडर हो गया, जिसका काम शुरू हो गया। अच्छा। दूसरा, इसको म्यूजियम स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सपर्टीज की आवश्यकता थी, जिस तरह के हेरिटेज आर्किटेक्ट की आवश्यकता थी, म्यूजियमोलॉजिस्ट की आवश्यकता थी, हमने उस तरह का वेंडर जो है सेलेक्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल टेंडर किया। बहुत सारे कंसोर्शियम्स ने उस पर हिस्सा लिया। हमने उसमें से एक कंसोर्शियम को जिसका जो टेक्निकली भी सबसे ज्यादा फिट था और जो फाइनेंशियली भी सबसे ज्यादा वाइबल था, उन दोनों को दृष्टिकोण से तय करके हमने उसको ऑनबोर्ड कर दिया। सो ओवर द टेबल जो इस पर काम करना है, उस पर काम शुरू हो गया। एक बार बिल्डिंग रीस्टोर होकर के उसकी सारी जो है उसकी स्ट्रेंथ एंड सब चीजों को वेरीफाई करने के बाद में जब मिलेगा, तब हम उसके ऊपर म्यूजियम में कन्वर्ट करने की दिशा से काम प्रारंभ कर देंगे। तो अंदर कितना बदलाव आएगा? विल इट बी गटेड कम्प्लीटली फ्रॉम इनसाइड, कि जो रिस्टोर करके जिस तरह से जो रूम्स जो थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। जो रूम्स को हम कोशिश ये करेंगे कि उनकी ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल सैंक्टिटी बरकरार रहे, लेकिन म्यूजियम के दृष्टिकोण से कुछ जो बदलाव करने वो बदलाव करेंगे। जैसे आपको अगर अनुभव होगा ही निश्चित रूप से, हमारे म्यूजियम, हमारी नॉर्थ साउथ बिल्डिंग्स में 3-3 जो है कोर्टयार्ड्स हैं बड़े। यस। अब वो कोर्टयार्ड्स तो खुले नहीं रखे जा सकते, तो हम उन कोर्टयार्ड्स को जो है ऑल वेदर ग्लास रूफ से कवर करेंगे और वो कोर्टयार्ड को भी बंद करेंगे, ताकि वो कोर्टयार्ड भी अपने आप में एक म्यूजियम का हिस्सा बन जाएगा। अभी जो हमारी वेरेंडाज एंड गैलरीज हैं वो ओपन है सारी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि म्यूजियम में एक कमरे से कोई निकले फिर दूसरे कमरे में जाए, तो उन गैलरीज को भी हम सबको कवर करके उनको म्यूजियम का पार्ट बनाएंगे। उनको हम ग्लास से हेरिटेज आर्किटेक्चर की सैंक्टिटी को बनाए रखते हुए उनको सबको हम कंसीडर करके एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस म्यूजियम का बने, एंट्री एग्जिट का बने। इन दोनों बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए नीचे टनल बनाए। उसके ऊपर इसके अलावा जो है रिसेप्शन एरिया से लेकर के, कैफेटेरिया से लेकर के, वहाँ एक्सपीरियंस सेंटर से लेकर, टिकटिंग एरिया से लेकर के, वहाँ जो है कॉन्फ्रेंस एरियाज एंड फैसिलिटीज से लेकर के, एम्पी थिएटर से लेकर, ये सब चीजें इसमें बनाने के लिए हमने टेबल पर जो डिजाइन करना था वो लगभग पूरा कर लिया। और हमारा टारगेट क्या है, कब खुलेगा? 2028 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हमको एटलीस्ट इसको फर्स्ट फेज में इनॉग्रेट करना है। हम उसके लिए पूरी प्राण की ऊर्जा से जुटे हैं, उसको पूरा करने पे काम कर रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट, बंदरों का क्या होगा जो इतने दे आर बिग मेनेस इन नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक? मैं मानता हूँ मंकी मीनेस है, पर मुझे लगता है कि आजकल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे साधन हैं जिससे इस मीनेस को
से पार पाया जा सकता है। और परंपरागत साधन भी बहुत सारे हैं कि जिससे इस चुनौती का समाधान किया जा सकता है। हम तो फेल हो गए उनको कंट्रोल करने में। यहाँ पर आप दे दीजिए कि आपके पास कोई टेक्नोलॉजी कुछ हो ना तो। कुछ मिलेगा। इसके अलावा वहाँ आने जाने वाले, क्योंकि इस तरह की अपेक्षा है इस म्यूजियम के बनने के बाद में कि एवरेज रोजाना 30 से 35 हजार लोगों का फुटफॉल होगा। राइट। वो सीमलेस हो, उसके लिए मेट्रो वहां तक कैसे पहुंचे इस पर काम हो रहा है, बस टर्मिनस उसके पास में कैसे आए इसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत जी। सारी चीजों पर साथ में काम कर रहे हैं। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मेनी ऑफ इंडियाज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल आल्सो कम फ्रॉम द इंडो इस्लामिक एरा, and at the same time there is a greater emphasis in India today on our Hindu civilizational identity. So how do you present both sides of that heritage to the outside world? देखिए, भारत की सभ्यता के लिए दोनों बराबर के महत्व रखते हैं, महत्ता रखते हैं। जब आप भारत की बात करते हैं, चाहे मैं युगे युगीन भारत के म्यूजियम की भी बात करूं, भारत का सभ्यतागत इतिहास निरंतरता का इतिहास है। 10,000 साल की निरंतरता से भी ज्यादा की निरंतरता का इतिहास है। और उस इतिहास में से ये पन्ने, चाहे उनका रंग कैसा भी होगा, उनको निकाला नहीं जा सकता। वो हमारे इतिहास का हिस्सा है और वो हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण धरोहर है जितनी महत्वपूर्ण कोई वैदिक इरा की धरोहर अगर है हमारे लिए, राखी गढ़ी और सनौली जितनी बड़ी धरोहर है उतनी बड़ी वो भी है। लेकिन हमारी इस तरह की ऐतिहासिक धरोहरों को हम किस तरह से प्रिजर्व करें और उनको एक एक्सपीरियंस सेंटर में कन्वर्ट करें, ये भी प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया। और अभी एक नई परियोजना पिछले बजट में अनाउंस हुई जिसको देश नाम दिया गया। सामान्यतया ऐसा होता था कि आर्कियोलॉजिस्ट जहां काम करते थे, एक्सकेवेशन करते थे, अपनी साइंटिफिक फाइंडिंग सारी करने के बाद में उसको वापस कवर कर देते थे और उसको छोड़ देते थे। चर्चा बहुत होती थी उसकी, बहुत सारी उसकी बातचीत उसके विषय में होती थी, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कौतूहल से वहां चला जाए तो उसको देखने के लिए कुछ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि इस दिशा में हमको काम करना चाहिए कि ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी जो हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बने। जो प्रधानमंत्री जी का गृहनगर है वड़नगर, वो जो है पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व की जगह है। वहां जो एएसआई ने और गुजरात सरकार ने खुदाई की पिछले 40 साल तक, उस पूरे एक्सकेवेटेड एरिया के ऊपर जो है म्यूजियम बना दिया गया। अब आदमी जब उस म्यूजियम में चलता है तब नीचे देखता है कि इस जगह पर यह खुदाई हुई थी, यहां से ये अवशेष निकला था और ये सामने रखा हुआ है, जैसे चाइना ने किया है, जैसे चाइना ने किया में। तो वैसा ही आप कभी वड़नगर जाइए, देखिएगा आपको अद्भुत अनुभूति होगी वहां। ऐसे ही 15 अलग अलग जगहों को हम डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए हमने काम का प्रक्रिया को शुरू कर दिया। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि we cannot ignore our heritage, whether it is whatever the color of Whatever the the heritage color of. may be. So we have to preserve and amplify our Islamic heritage, our Jain heritage, our Buddhist All heritage. the heritage means heritage for us, and that is equally valuable. Right. Now this is not just for tourism, but it should also be reflected in our educational system also, don't you believe? Yes, it is. तो सरकार के लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई फर्क होगा। So if we have to, you think we have to preserve the plurality of our cultural identity? So it is ये वो हिंदुस्तान की पहचान है। Yeah. हिंदुस्तान की पहचान ही विविधता है, हिंदुस्तान की पहचान ही समरसता है, हिंदुस्तान की पहचान ही कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट फेथ्स का, डिफरेंट बिलीव्स का, डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस का, डिफरेंट तरह के नेचर का, डिफरेंट तरह की कल्चर का, सबका अमलगमाइजेशन है, तभी एक हिंदुस्तान बनता है। But as a tourism minister, how do you feel when you see the conflicts between, Hindus and Muslims in many parts of the country, where we are fighting for a religious site, which can be actually a very good tourist site? देखिए, ये विषय केवल इतना ही सीमित नहीं है। केवल विषय इतना ही सीमित नहीं, और इनमें से बहुत सारे विषय तो क्योंकि अब न्यायालय में लंबित हैं इसलिए उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंततः इस बात को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि बलात् तलवार की ताकत के आधार पर जिन चीजों को परिवर्तित कर दिया गया और वो अगर सिद्ध हो जाती हैं तो केवल हिंदुओं से ही अपेक्षा न हो, बाकी दूसरे समाज से भी अपेक्षा हो कि वो भी उसको पीछे देख करके उसकी महत्ता और उसकी आस्था को समझ करके उस पर किसी तरह का निर्णय करें। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, भोजशाला का विवाद जो इतने वर्षों से चल रहा था, एएसआई को उसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। एएसआई ने साइंटिफिक एविडेंसेस स्टडी किया वहां, और वो साइंटिफिक स्टडी में हजारों के संख्या में एविडेंसेस मिलते हैं कि ये
जो है पहले भोजशाला, पहले संस्कृत का शोध केंद्र था, संस्कृत का अध्ययन केंद्र था और साथ में सरस्वती का, वाग्देवी का मंदिर भी था। जब कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया, मुझे लगता है सबने स्वीकार कर लिया और चल रहा है। जब न्यायालय इस पर निर्णय देंगे, क्योंकि जो चीजें न्यायालय में लंबित हैं उस पर टिप्पणी करें वो उचित नहीं है, लेकिन सबको समझ करके कैसे हम सहृदयता पूर्वक एक दूसरे को अकोमोडेट करके इस पे आगे बढ़े, इस पे हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहां पे भी विवाद हो, जिन क्षेत्रों में भी विवाद हो, उनको रिलीजियस साइट ना मानकर उनको एक टूरिस्ट साइट बना दिया जाए जो सबके लिए ओपन हो। देखिए, भारत में रिलीजियस साइट क्या, काशी विश्वनाथ मंदिर के बराबर में जो ढांचा खड़ा है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर को आप टूरिस्ट साइट बना सकते हैं। मथुरा के मंदिर के पास में, जन्मभूमि के पास में जिस तरह की स्ट्रक्चर खड़ा है, आप और मैं सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, दोनों पक्ष जानते हैं कि ये क्यों कर, कब किसने बनाया है, किन परिस्थितियों में बना है। क्या उसको टूरिस्ट साइट बनाया जा सकता है? मुश्किल है। अब चलते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का आप आंसर दीजिए। कोशिश करता हूं। व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन फॉरेनर्स हैव अबाउट इंडिया? भारत को आज भी भिखारियों और सफेरों का देश माना जाता था, लेकिन वो दृश्य अब बदल गया है। जी। इफ अ फर्स्ट टाइम फॉरेन विजिटर लैंड्स इन इंडिया टुमारो, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू वांट देम टू टेक बैक होम? जो फर्स्ट टाइम जो आ रहा हो यहाँ पर, he'll be amazed by the scale, by the infrastructure, because whosoever will come for the first time, he must be having some preconceived notions in his mind about India. As I've said, that false narratives have been created for India for the decades. When he'll come and he'll land in India and he'll see the infrastructure, first when he'll land in India and come out of any of the airport, maybe it is Mumbai, Navi Mumbai, Delhi or Calcutta or Bangalore, any airport, his first word which will come out of his mouth will be wow. Right. What is one Indian destination that every Indian thinks they know but actually does not? It's difficult for me to answer as a tourism minister because it will reflect a bias. Yes. So there are several destinations. Hindustan is a galaxy of destinations. अब इस पर डिपेंड करता है कि भारत में आने वाले व्यक्ति की रुचि क्या है। देखिए, एक प्लेटर में जितनी तरह की चीजें हो सकती है, एक टूरिस्ट जितनी तरह की अपेक्षा कर सकता है, वट एवर टूरिस्ट कैन डिजायर इन द वर्ल्ड, वट एवर टूरिस्ट, एंड आई एम सेइंग, मैं उसको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी पर्यटक अपने लिए जो कुछ उसकी इच्छा और खोज सकता है, वो सब कुछ भारत में है। जी ना, आपने खुद बहुत ट्रैवल किया है। जब आप पॉलिटिक्स से आने से पहले भी आप एक बार या कई बार आप जोधपुर से नागालैंड तक कार में गए फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ में। सो विच प्लेस इन इंडिया सरप्राइजेस यू इवन नाउ? All the places. Northeast. You have seen every place, yeah. Northeast is amazing. Our coastal area is immensely beautiful. Our jungles are beautiful. Our heritage places, the historical places, they are amazing. But the most amazing place in the world for me is Jaisalmer, where I have born. It's a wonderful place. It's a wonderful place. But Jodhpur which still fascinates me. Jodhpur and Jaisalmer, they are almost similar. Yeah. But why does it fascinate you? Because I have my reasons, but I want to hear from you. Yeah, because of their people, their culture, their food, their music, their craft, their beautiful sand dunes, the lovely weather, not the summers, but the other way, lovely weather. Yeah. See, वहाँ की मिट्टी की बरसात के बाद की खुशबू, हे भगवान. You are passionate about it. Yeah. If you had only 1 week to convince a foreign visitor to fall in love with India, where would you send him? नॉर्मली हिंदुस्तान में आने वाले लोग जो है 7 दिन के लिए जो आते हैं, जैसा मैंने कहा कि वो एक गोल्डन ट्रायंगल को ट्रैवल करते हैं, वो दिल्ली आते हैं, आगरा जाते हैं और जयपुर जाते हैं। लेकिन मैं तो सबको ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान इससे परे बहुत कुछ है। हिंदुस्तान इससे परे, इससे कई गुना कुछ है। और मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ कि भारत जो एक बार आता है वो बार बार आता है। तो कहाँ भेजेंगे उनको? राजस्थान के अलावा कहाँ भेजेंगे? मध्य प्रदेश, कर्नाटका? डिपेंड करता है कि उसकी खुद की रुचि क्या है। देखिए, कोई भी टूरिस्ट को आप एक ब्रैकेट में नहीं डाल सकते।
टूरिस्ट अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो उसको मध्य प्रदेश भी भेजा जा सकता है, महाराष्ट्र में जाकर के वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में की खूबसूरती में खो सकता है, वो राजस्थान आ सकता है, वो उत्तर प्रदेश जा सकता है, आपने कर्नाटका मिस कर दिया, कर्नाटका जा सकता हम्पी है, हम्पी जा हल्दीबीड सकता है। है। अभी पूरा हिंदुस्तान बिखरा है सौंदर्य से। अगर उसका वाइल्ड लाइफ देखने का इंटरेस्ट है तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें शेर, जिसमें टाइगर, जिसमें लेपर्ड, जिसमें चीता, जिसमें सिंगल हॉर्न राइनो और जिसमें एलिफेंट, ये सब जंगल सेटअप में आपको आसानी से साइटिंग के लिए मिलते हैं। दुनिया का एकमात्र देश है। जी बिल्कुल, अफ्रीका में भी ये सब नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। विच डू यू थिंक इज अ बिगर ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया, आवर कल्चर एंड टूरिज्म और बॉलीवुड? I think nowadays the biggest brand ambassador is our Prime Minister. That's a very political reply, but Yeah, otherwise also, I'm not, it's not a political reply. I'm saying as a layman, जैसा मैंने अभी कहा कि आज से 10 साल 15 साल पहले भारत के लिए पूछते थे तो गांधी जी भारत के ब्रांड एम्बेसडर थे दशकों तक, yeah. और अब मोदी जी भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बट फॉर भारत की कल्चर इज द भारत का ब्रांड एम्बेसडर, और भारत की कल्चर अपने आप में भारत की पहचान है पूरे विश्व भर में। जी, फाइनल क्वेश्चन, जैसे कोरिया ने के पॉप एक अपना ब्रांड आइडेंटिटी बना रखा है, थाईलैंड हैज सोल्ड हॉस्पिटैलिटी एज इट्स आइडेंटिटी, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल टूरिज्म आइडेंटिटी टुडे? दैट इज इनक्रेडिबल इंडिया, एंड नाउ फ्रॉम इनक्रेडिबल टू नाउ वी आर टेकिंग इट टू इनएविटेबल इंडिया. Inevitable India. Yeah. That's the one. Great. Thank you so much. Thank you.